پھیلاؤ روکنے کے لیے نئی پابندیاں لگا دی گئی ہیں۔ 10% سے زائد شرح والے علاقوں میں عوامی اجتماعات اور انڈور ڈائننگ پر پابندی عائد ہوگی۔ کھلے مقام پر شادی کی تقریب میں صرف 300 مہمان شریک ہو سکیں گے۔ جم، سینما اور مزارات پر داخلہ 50% کر دیا گیا ہے۔ 12 سال سے کم عمر بچوں کی نصف تعداد ایک دن اور باقی نصف تعداد دوسرے دن اسکول آئے گی۔ ملک میں کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے پابندیوں کا شکنجہ کس گیا۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اجلاس میں بڑے فیصلے کر لیے گئے۔ NCOC کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق 10% سے زائد شرح والے شہروں اور اضلاع میں نئی پابندیاں لگا دی گئی ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں عوامی اجتماعات اور انڈور ڈائننگ نہیں ہو سکے گی۔ شادی کی تقریب کھلے مقام پر ہوگی جس میں صرف 300 مہمان شریک ہو سکیں گے۔ جم، سینما اور مزارات میں صرف 50% لوگ ہی آ سکیں گے۔ پارک میں بھی صرف 50% لوگوں کو آنے کی اجازت ہوگی۔ متاثرہ شہروں میں کراٹے، باکسنگ، مارشل آرٹس اور رگبی کے مقابلوں پر مکمل پابندی ہوگی۔ کورونا میں اضافے سے ملک بھر میں تعلیمی سلسلہ بھی متاثر ہوگا۔ متاثرہ شہروں میں 12 سال سے کم عمر بچے ایک دن اسکول آئیں گے اور ایک دن چھٹی کریں گے۔ 12 سال سے زائد عمر کے وہ طلبہ جنہوں نے ویکسین کروائی ہو وہ روزانہ اسکول آ سکیں گے۔ پبلک ٹرانسپورٹ میں صرف 70% مسافر بیٹھ سکیں گے۔ ٹرینوں میں 80% مسافروں کی اجازت ہوگی۔ NCOC کے مطابق پابندیوں کا اطلاق 20 جنوری بدھ سے ہوگا اور یہ پابندیاں 31 جنوری تک برقرار رہیں گی۔ حکام 27 جنوری کو دوبارہ بیٹھک لگائیں گے جس کے بعد آئندہ کا لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ NCOC کے فیصلے تو آپ نے جان لیے۔ کن شہروں میں شرح 10% ہے اس کا آپ کو بتائیں تو کراچی میں شرح 40% سے اوپر چلی گئی ہے۔ مظفر آباد میں شرح 21% تک پہنچ چکی ہے۔ حیدرآباد میں شرح 14% ریکارڈ کی گئی ہے۔ اسلام آباد میں 12% اور پشاور میں کیسز کی شرح 11% رہی ہے۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ کراچی میں کورونا وبا کی شرح 40% سے اوپر جا چکی ہے جبکہ مظفر آباد میں یہ شرح 21% تک پہنچ چکی ہے۔ حیدرآباد کی بات کریں تو شرح 14% ریکارڈ کی گئی ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں شرح 12% ہے جبکہ KPK کے دارالحکومت پشاور میں کیسز کی شرح 11% ریکارڈ کی گئی ہے۔ کراچی کے گلی محلے بازار ہر جگہ کورونا وائرس کے وار۔ کورونا کی آسیب نے شہر کو پوری طرح اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ مثبت کیسز کی شرح 40% سے بھی اوپر چلی گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں سندھ میں 3283 کیسز رپورٹ ہوئے جن میں سے 2902 صرف کراچی میں سامنے آئے۔ شرح 40.13% رہی۔ کیسز میں اضافے کے باوجود شہر میں SOPs پر عمل درآمد نہیں ہوتا نظر آ رہا۔ ماسک لگا رہے ہیں سر، ابھی دکان جائیں گے، دکان پہ جا کے ماسک لگائیں گے، ابھی تو گھر سے آ رہے ہیں۔ سب کو یہ ماسک لگانا چاہیے، فاصلہ رکھنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے۔ اگر یہ نہیں کیا تو آگے جا کے ہمارے لیے نقصان دہ۔ بیماری تو آگے ہی ہو رہی ہے، کیا کریں گے ماسک کے؟ دیکھو تو ساری جگہ کہاں گندگی ہے۔ بس ایسے باہر گھوم رہے ہیں، ایسے اندر ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو ماسک کے علاوہ نہیں چھوڑتے، پہنتے ہیں ہم۔ جی نہیں، باہر تو ایسے کھلی ہوائیں گھوم رہے ہیں بس۔ نہیں الحمدللہ 12 مہینے پہنتا ہوں الحمدللہ۔ ابھی گھر سے نکلا ہوں۔ ماسک ایسی چیز ہے جو کہ سرجیکل پرابلم جب ہوتے ہیں تھیٹرز وغیرہ اس میں استعمال کیا جاتا ہے پریکاشنز کے لیے۔ کراچی ہی نہیں ملک بھر میں کورونا کے پھیلاؤ کی صورتحال تشویشناک ہے۔ آزاد کشمیر میں 5ویں لہر تیزی سے شہریوں کا اپنا شکار بنا رہی ہے۔ مظفر آباد میں مثبت کیسز کی شرح 21% تک پہنچ چکی ہے۔ سندھ کا دوسرا بڑا شہر حیدرآباد متاثرہ شہروں میں 30 نمبر پر ہے۔ یہاں مثبت کیسز کی شرح 14% ریکارڈ کی گئی۔ اسلام آباد میں 12% اور پشاور میں کیسز کی شرح 11% ہے۔ راولپنڈی میں مثبت کیسز کی شرح 10.2% ہے۔ ملک میں کیسز میں جتنی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے SOPs پر عمل میں اتنی تیزی سے کمی آ رہی ہے۔ حکومت نے جتنی بھی پالیسی اختیار کی کرونا کے متعلق، ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان کا ساتھ دیں، ماسک کا استعمال لازمی کریں۔ ہماری بے کی وجہ سے ہماری تعلیم، کاروبار سب کچھ متاثر ہو رہے ہیں۔ خطرناک ہے بہت زیادہ اور احتیاط ضروری ہے۔
काफी जरूरी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 8 अफराद अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठे। 5,472 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। मुस्बत केसेस की शरह 9.48% रिकॉर्ड की गई। कोरोना पर ही मजीद बात करेंगे। इस्लामाबाद से स्कूल्स पर हमें ज्वाइन किया है यासिर नजर ने, जबकि लाहौर में बात होगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर और सईद बलोच हमारे साथ होंगे। कराची में हमारे साथ मौजूद होंगी हमारी नुमाइंदा अनुषा जाफरी, जिनसे हम शादी हॉल्स के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले रुख करते हैं इस्लामाबाद का। यासिर नजर बताएगा, एनसीओसी ने क्या अब तक हिदायत जारी की है स्कूल बंदिश के हवाले से? जी बिल्कुल, कोरोना वबा एक मरतबा फिर तेजी से फैल रही है, जिसकी वजह से 10% से ज्यादा शरह जिन शहरों में है उनमें स्कूल जो है खास तौर पे 12 साल से कम जो बच्चे हैं उनकी 50% जो हाजिरी है उसके साथ अब खोलने का फैसला किया गया है। और इसके साथ 12 साल से जायद जो बच्चे हैं उनकी वैक्सीनेशन जो है वो लाजमी करार दी गई है और हर सूरत वैक्सीनेशन यकीनी बनाने की जो है हदायत जारी की गई है। SOPs पे सख्ती से अमल करने की हदायत दी गई है और जितने भी बच्चे हैं खास तौर पे क्योंकि 3 दिन हफ्ते में उनकी हाजिरी होगी और 50% के साथ उनकी जो 12 साल से कम उम्र बच्चे हैं जिन इलाकों में 10% से शरह ज्यादा है तो उनकी हाजिरी होगी। बच्चे छोटे बच्चे तो खुश हैं कि अब एक कोरोना की वबा जो है दोबारा से जिस तरह सर उसने उठाया, लेकिन ये अपनी छुट्टियों की वजह से खुश हैं। एहतियाती तदबीर तो यहाँ अपनाई गई है, मास्क सब बच्चों ने पहन रखे हैं। कोरोना की शरह बढ़ रही है तो छोटे बच्चों का बंद कर रहे हैं, तो इसी तरह बड़ों का भी बंद करना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई इस तरह की बात नहीं है कि छोटों को अगर कोरोना इफेक्ट करेगा तो बड़ों को नहीं करेगा। वो कोरोना से हर एक बंदा इफेक्ट हो सकता है, तो इसके लिए हुकूमत को सोचना चाहिए, एक प्रॉपर तरीके से फैसला लेना चाहिए। घर नहीं अगर वो ऑनलाइन काम कर दें तो ऑनलाइन या रिड्यूस सिलेबस कर दें तो फिर इजी हो सकता है, फिर हमारी पढ़ाई इजी हो सकती है। अगर पहले तरह रिड्यूस सिलेबस कर दें तो फिर कर सकते हैं, हमारी पढ़ाई इजी हो जाएगी। क्या कहेंगे हुकूमती इस फैसले? मैं कहना चाहता हूँ कि स्कूल बंद कर दिए और ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी जाएं। सही है। जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए वैक्सीनेशन जो है वो लाजमी करार दी है। अब यहाँ जितने भी जो खासतौर पर स्टूडेंट्स थे उनसे हमारी बात यही हुई है, यही इनका कहना है कि कुछ तो कह रहे हैं कि ऑनलाइन जो क्लासेज हैं वो होनी चाहिए और दूसरे ये कह रहे हैं कि बड़े जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी SOPs ऐसे ही होने चाहिए। जी लाहौर का रुख करेंगे। लाहौर में मौजूद है सईद बलोच। सईद बलोच, आपसे जानना चाहेंगे एनसीओसी की जानिब से क्या फैसले किए गए हैं खास तौर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर कि किस तरीके से एहतियाती तदाबीर के साथ इसमें चला जाएगा? लाहौर में कोविड की शरह 15% से तजावज़ कर गई है, लिहाजा लाहौर से भी एनसीओसी के फैसले के मुताबिक ट्रेनें जो हैं वो 80% मुसाफिरों के साथ चलेंगी। एनसीओसी ने फैसला किया है कि जिन शहरों में कोरोना की शरह 10% या इससे ज़ायद है वहाँ से ट्रेनें 80% गुंजाइश के साथ ही चलेंगी, लिहाजा लाहौर शहर भी इसकी जद में आता है। रेलवे इंतजामिया का ये कहना है कि कल से वो एनसीओसी के इस फैसले पर अमल दरामद का आगाज़ कर देंगे। दूसरी जानिब मुसाफिरों से हमारी जो बात हुई है, मुसाफिरों की अक्सरियत ने इस फैसले को तनकीद का निशाना बनाया है। उनका ये कहना है कि हुकूमत जो भी फैसले करती है वो अचानक करती है, जिसकी वजह से मुसाफिर जो हैं वो अफेक्ट होते हैं। उनका यह कहना है कि क्या ही अच्छा होता अगर हुकूमत चंद रोज़ पहले ये फैसला करती और मुसाफिरों को पेशगी ये इतला दे दी जाती ताकि वो अपना जो सफ़र है एनसीओसी के फैसले के मुताबिक प्लान करते। तो लिहाजा उनका ये कहना है कि हुकूमत को अचानक फैसले करने की बजाय ये फैसले जो हैं सोच समझ कर करने चाहिए। जबकि चंद मुसाफिरों का ये भी कहना है कि ये फैसला तो अच्छा है, इससे कोरोना को कम करने में मदद मिलेगी, लेकिन इसका फ़ायदा उसी वक्त होगा जब इस फैसले पर मनो अन एनसीओसी के फैसले के मुताबिक अमल दरामद होगा और रेलवे इंतजामिया जो है वो ट्रेनों में मास्क समेत जो दीगर SOPs हैं उनको पर अमल दरामद जो है उसे यकीनी बनाएगी। रुख करेंगे कराची का। कराची में अनुषा मौजूद है। अनुषा, आपसे जानना चाहेंगे शादी हॉल्स के हवाले से क्या बताया जा रहा है, क्या इकदाम किए जाएंगे, किस तरीके से तकरीबात मुनक्किद की जा सकेंगी? जी बिल्कुल, देखिए कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र जो है वो एनसीओसी ने कोरोना SOPs के हवाले से नई SOPs जो है वो जारी कर दी हैं। कहा यह जा रहा है कि जो शादी हॉल्स हैं उनके मुतालिक भी ये बताया गया है कि जिस डिस्ट्रिक्ट में शरह ज्यादा है उस डिस्ट्रिक्ट में तमाम शादी हॉल्स जो है वो बंद कर दिए जाएंगे 24 जनवरी से लेके 15 फ़रवरी तक। तो इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के PIB कॉलोनी में मौजूद है, यहाँ पर एक शादी हॉल है, इनसे बात करते हैं। ये बताइएगा ये फैसला आया है? जी ये तो सही है हुकूमत की तरफ से, और जो कि ये कोरोना वायरस भी आया हुआ है, मगर ये है क्या पिछले लॉकडाउन लगा तो उसमें भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और बेरोजगारी ज़्यादा है,
क्योंकि यहाँ मजदूर लोग काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए एनसीओसी की जानिब से आज जो है वो ये एसओपीज जारी तो कर दी गई है कि इस तरीके से जो है शादी हॉल्स बंद रहेंगे उन डिस्ट्रिक्ट में जहां पर केसेस की शरह ज्यादा है, लेकिन जो मजदूर लोग यहाँ काम करें इनसे हमने बात की, इनका यही कहना है कि इस तरीके से जो है वो शादी हॉल्स को बंद नहीं करें क्योंकि इनकी जो है वो मेहनत मजदूरी यहाँ से चल रही है। पहले भी लॉकडाउन लगा था तो काफी नुकसान हुआ था उनको। इसके अलावा जो है ये कहा गया है कि स्कूलों के अंदर भी जो है वो हाजिरी कम कर दी गई है। हमारे साथ मौजूद थे हमारे नुमाइंदगान इस्लामाबाद से यासिर नजर, जबकि कराची से अनुषा जाफरी ने हमें अपडेट किया। लाहौर से हमें ज्वाइन किया था हमारे नुमाइंदे सईद